Good morning, everyone. Today is 24th of August 2026, and today we have our PhD scholar Kirti Diwan with us to tell regarding the Pitradosh. So today will be her last session, and let's wish her a good luck. And Thank you so much. over to you, sir. With your permission, we can start it. Yes, please. Thank you, sir. All the best. Thank you so much, sir. Before I begin my presentation, welcome to all and special gratitude to my guru, Professor Krishnakant Sharma ji, my East, my parents and my ancestor. आज मैं यहाँ हूँ आपके सामने जो कुछ भी प्रेजेंट कर रही हूँ वो इन सब की ब्लेसिंग्स और इन सब के ग्रेस से ही है कि मैं यहाँ तक पहुँच पाई. Yeah, my topic is a Pitra dosha is not a dosha. Let's start. First, introduce myself. I am Kirti Diwan, PhD scholar at the Vedic Science Research Organization. From a very young age, I was deeply fascinated by the cosmos, constantly wondering how planetary movement quietly shape our lives and choices. My academic journey began with a degree in commerce from Delhi University, followed by a master in yoga. But my passion for understanding cosmic energies led me here. Vistro transformed my curiosity into structure research, but it was under the guidance of my respected guru, Professor Krishnakant Sharma ji, that this path became clear and effortless. Under his mentorship, I mastered Vedic, Bhrigu Nandi Nadi, numerology, Vastu, and medical astrology, which laid the foundation for my PhD work today. Today, I am honored to share a topic very close to my heart. Pitta dosha is not a dosha. We often view Pitta dosha through a lens of fear and karmic burden. Today, I invite you to look beyond that fear to reframe the ancient concept not as a curse or flaw, but as a profound opportunity for ancestral healing, karmic alignment, and spiritual evolution. Vedic Science Research Organization. Vedic Science Research Organization is a temple of higher cosmic learning. Under the visionary guidance of my guru, Professor Krishnakant Sharma, Visto has given a fresh modern life to ancient research. It is a place where classical astrology meets modern academic rigor. Visto empower researchers like me to move beyond outdated misconceptions and present the true luminous soul of Vedic astrology to the world. Recap our last session. In our last session, we explained a very important question: is Pitradosha a dosha or a deeper message from our lineage? We understand how it is seen in a classical astrology and modern astrology and what is the difference between the two. What is a Pitradosha? Pitradosha is not just a dosha in the negative sense. It is actually a karmic imbalance that we have inherited from our ancestor and lineage. It is a message from our past that something was left incomplete or some duties, respect, or balance related to our ancestor were missing. Classical astrology versus modern astrology. Classical astrology, based on ancient texts like BPHS, is seen through specific planetary combination, affliction in ninth house, involvement of Rahu, Ketu, Saturn, Sun, and by checking divisional charts. In modern astrology, look at the deeper pattern in our soul journey, family, energy, karmic lessons, and emotional impact. It uses physical, psychological, spiritual, and transpersonal approach along with chart. Why calling it is a dosha is incorrect. Calling it is a dosha give it is a very negative meaning like a curse or punishment, but actually it is a karmic imbalance that we have received. Pitra dosha has two sides. When imbalanced, we call it Pitra dosha. It may bring delay, obstacle, or struggle in life. When balanced, we call it Pitra blessings. It brings protection, support, success, good health, peace, prosperity, and spiritual growth. Next, combination of Pitra dosha, different planetary combination that may include ancestral influences, houses and bhava analyzes, understanding how Pitra dosha express itself through different houses. Effect in all 12 houses, exploring how Pitta dosha can influence different area of life depending on the bhava involved. Importance of the sun and ninth house, understanding their connection with father, ancestor, lineage, dharma and pitra, understanding family pattern, observing repeated themes, events and tendency within the family lineage, connecting astrology with ancestral patterns, learning to look beyond a single combination and identify pattern through multiple layer of verification. Role of karma and dharma.
understanding the deeper connection between ancestral theme, responsibilities, and dharma. Pattern versus coincidence, learning that one event may be coincidence, but repeated pattern across generation deserve deeper investigation. Multi-layer verification, checking the same theme through planets, house, sun, ninth house, and family history, from observation to understanding, using astrology not to create fear, but to understand ancestral pattern with awareness and responsibility. ये सभी चीजें हमने अपनी लास्ट 2 प्रेजेंटेशन में समझी थी. Now, today we will discuss how to identify Pitra dosha in a Kundalini and its spiritual remedies. आज हम देखेंगे वो कौन कौन से जो भी हमने लास्ट क्लास में कॉम्बिनेशन दिए देखे थे वो कैसे हम एक कुंडली पर लगाकर देख सकते हैं कि पितरा दोषा है कि नहीं. ये है मेरी केस स्टडी 1. ये है वर्गो असेंडेंट का चार्ट जिसमें 9th हाउस इंडिकेट टॉरस राशि है. हमने अपने लास्ट सेशन में देखा था कि पितरा दोषा के लिए जो मेन इंडिकेटर होते हैं सन, 9th हाउस लॉर्ड, उन पे किसी भी तरह का अफ्लिक्शन या बैड प्लेसमेंट पितरा दोषा दिखाती है. अगर आप यहाँ देखेंगे 9th हाउस टॉरस राशि है जिसका लॉर्ड है वीनस, वो 8th हाउस में अपने से 12th में सिटिंग है और साथ में सन भी यहाँ एक्सॉल्टेड है लेकिन 8th हाउस में होने के कारण उसकी कंडीशन थोड़ी सी बैड है और साथ में राहु का एफ्लिक्शन है. तो ये जिस नेटिव का चार्ट है उनकी लाइफ में बहुत ही सडन इवेंट्स लगातार होते रहते हैं. लाइक उनके बहुत बार एक्सीडेंट्स हुए हैं या बहुत बार उनकी लाइफ में ऐसे चेंजेस आए हैं जिनके कारण उनका ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है जब तक कि वो स्पिरिचुअल जर्नी पर नहीं थे, या जो भी हम रेमेडियल पार्ट कहते हैं जिसकी हम आगे बात करेंगे उसके बारे में मैं आपको बताऊं. नेक्स्ट चार्ट है, इसमें आप देखेंगे स्कॉर्पियो असेंडेंट है और 9th हाउस कैंसर राशि जिसके लॉर्ड 10th हाउस में मून 10th हाउस में है मून और साथ में मार्स, सैटर्न और राहु है और जुपिटर. तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 9th लॉर्ड पर भी एफ्लिक्शन है जिसके कारण और जो ये नेटिव है इनकी लाइफ में अपनी जॉब को लेकर बहुत स्ट्रगल रहा है. बहुत बार इनकी जॉब चेंजेस और ये जहां भी जाते हैं एक सेटिस्फेक्शन नहीं होता इनकी लाइफ में. जो इनका मेन प्रॉब्लम रही है आज तक अपने करियर को लेकर, ये आज भी सेटिस्फाई नहीं है. और कहीं ना कहीं सेवंथ हाउस में यहाँ पर सन 7th हाउस में है. अब वो टॉरस राशि में है लेकिन क्योंकि सन 7th हाउस में कहीं ना कहीं डेबिलेशन पॉइंट पे आ जाता है तो कहीं ना कहीं इनकी शादी और उस पर सैटर्न का 10th एस्पेक्ट है जो दिखाता है कि कहीं ना कहीं इनको अपनी शादी में भी कुछ इश्यूज रहे हैं. नेक्स्ट केस स्टडी है, इसमें वर्गो लगना है 9th हाउस टॉरस राशि जिसमें सन और केतु का कॉम्बिनेशन है और 9th लॉर्ड 8th हाउस में बैठे हैं अपने से 12th. तो ये भी कहीं ना कहीं दिखाता है, जैसे हमने लास्ट सेशन में पढ़ा था कि सन का सिर्फ 9th हाउस में होना ये नहीं दिखाता कि कोई पितृ दोषा है, लेकिन अगर उस पर कोई अफ्लिक्शन है और या आपकी लाइफ में कुछ ऐसे पैटर्न्स आ रहे हैं तो वो प्रॉब्लम दिखाता है. ये जो नेटिव है इनके फादर की बहुत कम एज में वो एक्सपायर हो गए थे इनके फादर और तब से इन पे फैमिलीज की बहुत जिम्मेदारी रही है. तो इनकी लाइफ में सडन इवेंट्स बहुत ज्यादा हुए, चाहे वो करियर को लेकर, चाहे वो अपनी फैमिली बर्डन्स को लेकर. इवन अभी तक इनकी मैरिज भी नहीं हुई है. तो अभी तक इसी तरह से हम बहुत सारे चार्ट्स में जो भी लास्ट सेशन में हमने कॉम्बिनेशन पढ़े उन्हें हम देख सकते हैं कि इसमें आपका पितृ दोषा इंडिकेट हो रहा है कि नहीं. अब हम चलते हैं अपने रेमेडियल पार्ट में, जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है आज की क्लास का. शिव पुराण में भी कहा गया है कि जब हम अपने फादर्स को, अपने ग्रैंडफादर्स को, अपने ग्रेट ग्रैंडफादर्स को याद करते हैं, उनके श्राद्ध करते हैं, पिंडदान करते हैं, उनके लिए डोनेशन देते हैं, तो कहीं ना कहीं उन्हें वो लिबरेशन मिलती है, उन्हें वो मुक्ति मिलती है, कहीं ना कहीं वो उनकी हम ब्लेसिंग्स हमें मिलती है. लेकिन ये जो कॉन्सेप्ट है जो हम अपनी रेमेडी के लिए यूज करते हैं, फॉर एग्जाम्पल जो हमारे क्लासिकल्स में लिखा हुआ है, उसके पीछे का रीजन क्या है. चलिए पहले हम जान लेते हैं कि हम कौन कौन सी रेमेडी पितृदोषा के लिए करते हैं. हमारे क्लासिकल्स पे लिखा गया है गरुड़ पुराण में, पिंड दानम तथा दानम तिलोदकम
तथैव च एतं तृप्यन्ति पितृ सर्वे न तेषा भवति दोदिचत. By offering pindadanam, donation and sesame water, all ancestors are satisfied. करण पुराण में भी यही लिखा गया, अगर हम पिंडदान देते हैं, पितरों का दान देते हैं, डोनेशन देते हैं, तो हमारे एंसेस्टर सेटिस्फाई होते हैं और हमें ब्लेसिंग्स देते हैं. मत्स्य पुराण में लिखा गया है, अमावस्या श्राद्ध काले च पिंडदानम विशेषतः पितृणा तृप्यते पुण्य पितृ दोष नाशनम. अर्थात अगर हम अमावस्या के दिन श्राद्ध करते हैं, दान करते हैं, तो उससे भी हमारा पितृदोष डिस्ट्रॉय होता है. वामन पुराण में लिखा गया है, त्रिलोकदय प्रदातव्य पिंडदानम तथा च गायत्री जप युक्तो पितृलोकन अवापनोति. ऑफर सीसम वाटर, परफॉर्म पिंडदान एंड चैंट गायत्री मंत्रा हमारे एंसेस्टर की मुक्ति के लिए बहुत जरूरी है. स्कंद पुराण में लिखा गया है, गया गंगा प्रयागेशु पिंडदानम समाचरेत तत पितृणात्मित श्रेष्ठ पितृदोष प्रशानम. अर्थात हम कोई भी परफॉर्म करते हैं रिचुअल्स अपने एंसेस्टर के लिए, या पिंडदान करते हैं गया गंगा जी या प्रयाग जाकर, उससे हमारे एंसेस्टर बहुत सेटिस्फाई होते हैं. बृहद नारद पुराण में लिखा गया है, महामृत्युंजय मंत्र का जाप करने से भी हमारे सारे दोषों का नाश होता है. अक्सर हमारे क्लासिकल्स में जो रेमेडी लिखी गई हैं, रिकमेंड की जाती हैं, श्राद्ध करना, पिंडदान करना, अपने पितरों को याद करके, गायत्री मंत्र का जाप करना, महामित्र मंत्र का जाप करना, होली प्लेसेस पे विजिट करना, उनके नाम से डोनेशन देना, जरूरतमंदों को अन्नदान करना, और उन्हें याद कर कर हमेशा अपने घर में उनके नाम के दिया जलाना. परफॉर्म विथ फेथ, प्योरिटी एंड ग्रेटिट्यूड. ये सारी वो रेमेडीज हैं जो कहीं ना कहीं क्लासिकल में लिखी गई हैं, जो कहीं ना कहीं हम अपने अपने फैमिली में बड़ों से या अपने एस्ट्रोलॉजर से या पंडितों से, ये सब हम आज तक सुनते आए हैं. लेकिन ये रेमेडी के पीछे का रीजन क्या है कि हम जो पितृदान, जो हम श्राद्ध के लिए कहते हैं, कि क्या ये रीजन है जो ये रेमेडीज आई कि ये करने से हमारे एंसेस्टर खुश होंगे या उनकी सोल को सेटिस्फेक्शन मिलेगा. तो इसके लिए हम महाभारत में एक कथा है. कर्ण, जिन्हें दानवीर कर्ण कहा जाता था, वो अपने दान के लिए ही सबसे ज्यादा फेमस थे. जब वो आफ्टर कुरुक्षेत्र वॉर के बाद हेवन गए, तो वहां पर उन्हें खाने के लिए सिर्फ और सिर्फ धन, ज्वेलरी, गोल्ड, सिल्वर यही मिला, उन्हें अन्न नहीं मिला. जब उन्होंने पूछा कि मैंने इतना दान किया है लेकिन मुझे खाने के लिए ये सब मिल रहा है, अन्न नहीं मिल रहा, तब उन्हें बताया गया, क्योंकि उन्होंने पृथ्वी पर कभी भी अन्न दान नहीं किया, कभी भी उन्होंने अपने एंसेस्टर को पूजा नहीं, उनके नेम पर डोनेशन नहीं दिया, अन्न दान नहीं किया, पिंड दान नहीं किया, इसीलिए उन्हें हेवन में वो चीजें नहीं मिल रही हैं. कर्ण ने रिक्वेस्ट करी कि उन्हें, क्योंकि अपने एंसेस्टर का पता नहीं था, इसीलिए वो नहीं कर पाए. इसके लिए उन्हें इस बात का प्रायश्चित करने के लिए दोबारा धरती पर भेजा गया. और जब वो आए धरती पर भाद्रपद मंथ में, तो वो 16 दिन, भाद्रपद पूर्णिमा से जो स्टार्ट होते हैं, वो 16 दिन पितृपक्ष कहलाते हैं, जो आज भी इंडिया में हम अपने एंसेस्टर को याद करके उनके प्रति ग्रेटिट्यूड दिखाकर अपनी उन सारी रिचुअल्स को परफॉर्म करते हैं, उनकी आत्मा की शांति के लिए, और ताकि उनकी ब्लेसिंग्स हमें मिल सके. व्हाट इज रेमेडी? अब यहाँ पर मेन पॉइंट ये आता है कि रेमेडी क्या है. जस्ट अ मिनट. Any issue? नो मैम, Yeah. मैं स्क्रीन मूव कर रही थी मैम. Okay. द मेन पार्ट इज रेमेडी क्या है. हम सब लोग रेमेडी रेमेडी करते रहते हैं अपनी लाइफ की हर प्रॉब्लम के लिए, चाहे वो पितृ दोष हो, काल सर्प दोष हो, मंगल दोष हो, कोई भी दोष हो हमारी कुंडली का, उसके लिए हम हमेशा किसी भी एस्ट्रोलॉजर के पास जाकर रेमेडी मांगते हैं. पर क्या रेमेडी का हम सही मतलब समझते हैं क्या? हमें क्या ऐसा लगता है आपको कि सिर्फ एक पिंडदान करने से या किसी भूखे को भोजन करवाने से हमारी कुंडली के जो दोष हैं या हमारी लाइफ के जो दोष हैं वो दूर हो जाएंगे? आप खुद सोच कर देखिए, क्या रेमेडी वो मैजिक है कि हमने कोई कोई एक्शन किया और हमारी लाइफ में सब कुछ चेंज हो गया? नहीं, वो पॉसिबल ही नहीं है. क्योंकि रेमेडी को करने से पहले रेमेडी के बारे में जानना बहुत जरूरी है. रेमेडी 3 चीजों से मिलकर बनती है. फर्स्ट,
वो जो आपको रेमेडी दे रहा है उसका ऑरा। क्योंकि आप जब किसी के पास वो रेमेडी लेने जाते हैं तो आपका एक फेथ होता है, आपका एक विश्वास होता है कि जब वो मुझे कोई चीज बताएंगे तो उसका मेरी लाइफ में इफेक्ट हो। एज अ आप वो रेमेडी ले रहे हैं तो आपका उसमें एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि आप टेकर हैं उस रेमेडी के। तो आप किस फेथ से उस रेमेडी को ले रहे हैं, आपका क्या भाव है उसके पीछे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड थर्ड, कर्मा, वो एक्शन जो हम उस रेमेडी में ऐड करते हैं। क्योंकि अगर आप एक एस्ट्रोलॉजर के कहने पे मंदिर भी जाते हैं तो वो आपका एक एक्शन है, आपका एक कर्मा है। और ये तीनों चीजें मिलकर ही वो रेमेडी बनाती हैं, जिसको आप पूरे फेथ के साथ करते हैं। अब प्रॉब्लम यहाँ पर यह है कि आप आज इंस्टाग्राम पर, आज ऑनलाइन हजारों रेमेडियां मिल रही हैं। और अगर रेमेडीज करने से हमारी लाइफ की प्रॉब्लम सॉल्व होती है तो क्यों आज भी लोग इतना परेशान है अपनी लाइफ में, जब हमें फ्री में ऑनलाइन इतनी रेमेडी इंस्टा के थ्रू, फेसबुक के थ्रू मिल रही है। पैसे कमाने के लिए, अच्छी जॉब के लिए, अपनी मैरिज में सक्सेस के लिए, तो क्यों हम वो रेमेडी कर कर, हमें क्या जरूरत है किसी एस्ट्रोलॉजर पे जाने की, या हमें क्या जरूरत है ये सारी चीजें पढ़ने की, अपने क्लासिकल्स को जानने की। कोई तो उसके पीछे रीजन होगा, क्योंकि वहां वो भाव ही नहीं होता, ना देने वाले का और ना ही लेने वाले का। हम सोचते हैं कि अगर ये रेमेडी हमें मिली है, हम जस्ट इसे करते हैं फटाफट और हमारी जिंदगी में वो मैजिक हो जाए, लेकिन वो पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि किसी भी रेमेडी के लिए आपका वो भाव होना बहुत जरूरी है कि आप उस रेमेडी को किस लिए कर रहे हैं। जब हम पितृदोषा की रेमेडी करते हैं तो उसके लिए हमारा अपने पितरों के प्रति वो भाव होना बहुत जरूरी है। और वो हम सोचते हैं कि पितृदोष की कोई भी रेमेडी सिर्फ उनके लिए है जो चले गए हैं, लेकिन एज अ पेरेंट्स जो हमारे साथ हैं, क्या हम उनके लिए भी वही भाव रखते हैं? क्या हमारे मन में उनके लिए भी वही सेवा भाव, वही सब कुछ होता है? हम उन्हें भूल जाते हैं, उन्हें पूछना, उनके लिए कुछ करना। लेकिन हम चाहते हैं जो चले गए हैं, हमारे एंसेस्टर बन गए, हम उनके लिए कोई रेमेडी कर कर अपने जीवन में ब्लेसिंग्स ले लें। और जो हमारे सामने हैं, हम उनके साथ वो टाइम स्पेंड करना, उन्हें याद करना, उन्हें ग्रेटिट्यूड करना भूल जाते हैं। यहाँ पर मैं आपको एक लाइव केस सुनाऊंगी अपनी लाइफ का, जो मैंने फील किया और जो मेरी इस जर्नी में पितृदोषा के बहुत काम भी आया। और यहीं से शायद मैं समझी कि रेमेडी का असली अर्थ क्या होता है। लास्ट ईयर मेरे पास मेरी सोसाइटी की एक लेडी आई थी। वो बहुत परेशान थी। जस्ट उन्हें पता चला था मैं एस्ट्रोलॉजी कर रही हूँ तो जान पहचान हो जाती है। वो मेरे पास आकर बैठी, उन्होंने मुझे बताया अपने घर के बारे में। वो बहुत वो चाहती थी डिवोर्स लेना। तो उनका क्वेश्चन मुझसे यही था कि मैं अपने हस्बैंड से डिवोर्स लेना चाहती हूँ तो क्या वो सही रहेगा। तो मैंने उनसे उसका रीज़न पूछा कि कोई स्पेसिफिक रीज़न है उस डिवोर्स का। तो उन्होंने बोला कि उनकी अपनी इन लॉ से नहीं बनती, उनके हस्बैंड उनकी बात नहीं सुनते हैं, एंड उनकी फैमिली में काफ़ी बड़ा पितृदोष है। तो मैंने उनसे पूछा कि कोई रीज़न, तो उन्होंने बताया कि उनकी फैमिली में उनके जो ब्रदर इन लॉ है, उनके जेठ और उनके हस्बैंड के छोटे भाई, उनके भी डिवोर्स हो रखे हैं। और उनकी सिस्टर इन लॉ की लाइफ में भी काफ़ी प्रॉब्लम चल रही है। तो फैमिली में कहीं ना कहीं एक पैटर्न है कि उनके दोनों ब्रदर इन लॉ के डिवोर्स हो रखे हैं, और सिस्टर इन लॉ के साथ भी वही पैटर्न रिपीट होने के उसमें है। तो उन्होंने मुझसे ये क्वेश्चन पूछा। तो उस टाइम मेरे पास क्योंकि तब मुझे उतना नॉलेज नहीं था, मैं पढ़ ही रही थी, और मैं नहीं चाहती थी कि मैं किसी को कोई ऐसी रेमेडी दूं या किसी को बोलूं कि आप डिवोर्स लो या ना लो, क्योंकि मैं उस लायक नहीं हूँ कि मैं किसी को ये गाइड कर सकूं कि आप डिवोर्स लो या नहीं लो। लेकिन मैंने उनसे सिर्फ ये पूछा कि आपने जिसे भी ये दिखाया था या जिनसे भी पूजा कराई थी, क्या आपने रीजन पूछा उस पितृदोषा का, कि कोई रीजन है स्पेसिफिक जो ये सब हो रहा है? तो उन्होंने बताया कि हाँ, जो हमारे फैमिली पंडित हैं उन्होंने बोला था कि आपके फैमिली में किसी लेडी का कोई कर्स है, आपके एंसेस्टर ने आपकी फैमिली की किसी लेडी को बहुत परेशान किया हुआ है किसी जन्म में, जिसके कारण आपके घर में जो भी लेडी होती हैं, जो भी फीमेल होती हैं, वो सेटिस्फाई नहीं हो पाती, वो बहुत परेशान रहती हैं। तो उन्होंने मुझे इसका रीजन बताया। तो मैंने उन्हें कहा कि मैंने उन्हें उस दिन कुछ नहीं कहा, क्योंकि मैं उस दिन मैंने उन्हें नेक्स्ट डे बुलाया। मैंने कहा मैं आपको नेक्स्ट डे रेमेडी दूंगी, आप मेरे पास आइएगा। नेक्स्ट डे मैंने उन्हें एक चीज बोली। मैंने कहा अगर आप क्या दूसरी शादी करना चाहते हैं? उनका जवाब था नहीं, वो दूसरी शादी नहीं करना चाहते।
तो मैंने कहा तो आप इस रिलेशनशिप से अलग होना क्यों चाहती हैं? क्योंकि हो सकता है ये आपके वो प्रारब्ध हैं। अगर आप आज अलग हो भी गई तो नेक्स्ट जन्म में इन्हें चुकाने के लिए आपको फिर इसी फैमिली में आना पड़ेगा, फिर इन्हीं पैटर्न में आना पड़ेगा, और फिर आप ऐसे ही परेशान होंगे। और दूसरी चीज, आपने खुद कहा कि आपकी मदर इन लॉ के साथ आपकी नहीं बनती है फादर इन लॉ के साथ। तो जब आप उनके साथ आपकी कोई लड़ाई होती है, बहस होती है, तो क्या आप उन्हें कुछ अपशब्द कहती हैं? तो उन्होंने बोला हाँ, क्योंकि उन्होंने मेरे साथ बहुत बुरा बुरा किया है, तो मैंने उन्हें बहुत, मैं बुरा भला कहती हूँ, बहुत कर्ज देती हूँ। तो मैं एक्चुअली उन्हें यही समझाना चाहती थी। बेसिकली मैंने उनकी कुंडली नहीं देखी थी, बट मैं उनके पैटर्न से एक चीज समझ गई थी। मैं उन्हें यही समझाना चाहती थी कि आज आप एक रिलेशनशिप में वो जो कर रही हैं, अपनी फैमिली को एक कर्ज दे रही हैं, तो कल को यही कर्ज, उनकी एक बेटी थी, तो मैंने उन्हें समझाया कल को एक बात बात है, ठीक है, मैं ये नहीं कह रही आप गलत हैं या सही है, लेकिन कल को यही कर्ज, कल आपको आपकी मदर इन लॉ है, हम उसी लिनेज में आते हैं, एक फैमिली चेन की तरह। आपकी बेटी के संतान के रूप में हो सकता है आपकी मदर इन लॉ आपकी लाइफ में वो वापस आए, और वही जो कर्ज आपने उन्हें दिया है आपकी बेटी को वो पे ऑफ करना पड़े। और फिर हम कहते हैं कि हमारी लाइफ में पितृदोष है। तो क्या हम जिम्मेदार नहीं है उस पितृदोष के लिए? क्या हमारे आज के एक्शन जिम्मेदार नहीं है उस पितृदोष के लिए? हाँ, यहाँ पर एक चीज अच्छी थी कि वो लेडी थोड़ी स्पिरिचुअल थी, तो उन्हें मेरी बात बहुत समझ आई, और उन्होंने इस चीज को एक्सेप्ट किया कि जो बात मैं कह रही हूँ वो बहुत हद तक ठीक है। तो उन्होंने उसके बाद मुझसे पूछा कि मुझे क्या करना चाहिए। उस समय मेरे, जो मुझे ठीक लगा, मैंने उनको बताया कि आपको अपनी लाइफ में सबसे पहले ग्रेटिट्यूड लाना बहुत जरूरी है। एक्सेप्टेंस, ग्रेटिट्यूड और फॉरगिवनेस। एक्सेप्टेंस इस बात की, ये सिर्फ उन्हीं के लिए नहीं है, हम सब के लिए भी है। एक्सेप्टेंस इस बात की कि हमारे पितरों से भी गलतियां हो सकती हैं और हमसे भी, और अगर वो गलती हुई है तो हम उन गलतियों के लिए माफी मांगे, एक्सेप्ट करें कि हमसे वो गलती हुई है। हम ये ना सोचे कि हमारे साथ ये क्यों हो रहा है, हमने तो कुछ गलत किया ही नहीं, हमने तो कभी किसी के साथ बुरा किया ही नहीं, भगवान हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहा है। अक्सर हम यही शिकायत करते हैं कि भगवान हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहा है, हमने तो कभी किसी के साथ बुरा किया ही नहीं। पर हमारा किया हुआ अच्छा बहुत लोगों के लिए बुरा भी होता है। तो इसीलिए हमारे अंदर ये एक्सेप्टेंस होनी चाहिए कि हम जो कर रहे हैं वो सही है या गलत है, उसे हम जैसे भी है उसे एक्सेप्ट करें। दूसरी चीज, ग्रेटिट्यूड। आज हम जो भी हैं अपने एंसेस्टर के कारण ही हैं। उस लीनेज में, उस चेन में हम आए हैं, आज हमें शरीर मिला है कि आत्मा मिली है, तो कहीं ना कहीं हमारे एंसेस्टर का उसमें एक बहुत बड़ा हाथ है। तो हमें हमेशा ये ग्रेटिट्यूड रखना चाहिए कि आज ये जो जीवन हमें मिला है वो उनके कारण मिला है, और अगर हम उनकी अच्छी चीजों के लिए जिम्मेदार हैं तो उनकी बुरी कर्मों के लिए या बुरी चीजों के लिए भी हम उतने ही जिम्मेदार हैं। जब हम अपने पेरेंट्स के जाने के बाद उनकी प्रॉपर्टी के लिए हकदार बन जाते हैं, लड़ते हैं कि नहीं हमें मिलनी चाहिए, तो हमारे पेरेंट्स द्वारा या हमारे एंसेस्टर द्वारा किए गए कर्मों के लिए हम क्यों जिम्मेदार नहीं अपने आप को मानते? हम क्यों नहीं कहते कि हाँ उनके द्वारा की गई गलतियों की भी को भी हम ही चुकाएंगे? प्रॉब्लम ये है, हमें सिर्फ अपनी लाइफ में अच्छा ही अच्छा चाहिए। एंड थर्ड चीज, फॉरगिवनेस, जो आज के टाइम में हम सबके अंदर बहुत कम है, क्योंकि हम चीजों को दिल पर लेकर बैठ जाते हैं और फॉरगिव कर ही नहीं पाते। फॉरगिवनेस सिर्फ इस बात की नहीं कि किसी ने हमारा दिल दुखाया या किसी ने हमारे साथ गलत किया। फॉरगिवनेस इस बात की भी, अगर हमने भी किसी के साथ गलत किया है तो हमें भी उसे माफी मांगनी चाहिए। यहाँ पर मैंने उन्हें यही रेमेडी दी कि आप कुछ मत करिए। मैं आपको ये नहीं कहूंगी आप कोई मंत्रा करिए, आप मंदिर जाइए, आप डोनेशन दीजिए, आपको अपनी लाइफ में आगे डिवोर्स भी लेना है आप लीजिए, आपको जो करना है। लेकिन आप कुछ टाइम, कुछ मंथ के लिए सिर्फ रात को सोने से पहले ये तीन चीजें जो मैंने आपको समझाई हैं आप कीजिए। आप सिर्फ 5 मिनट्स के लिए सिर्फ ये सोचिए सोते हुए कि आपके सामने आपके हस्बैंड, आपके इन लॉज या आपके एंसेस्टर, और आप उनके सामने हैं, और आप उनसे अपनी सभी गलतियों के लिए माफी मांग रही हैं। यहाँ उनको थोड़ा सा बुरा इस बात का लगा कि मैं क्यों, मैंने तो गलती करी नहीं, मैं क्यों माफी मांगू। तो यही चीज मैंने उनको समझाई कि फॉर, आपके हिसाब से आप गलत नहीं है, लेकिन आपने कौन से जन्मा में गलती करी ये आपको नहीं पता। तो बहुत जरूरी है कि आप उनसे अपने कर्मा के लिए, और आप कोई फिजिकल फॉर्म में उनसे माफी नहीं मांग रहे जहां आपको भी ये फील हो कि मैं छोटी हो जाऊंगी माफी मांगकर।
आप एक थॉट रख रही हैं, आप अपने, हम आज के टाइम पे कहते हैं टेलीपैथी, हम किसी का फोन आता है तो हम उसे कहते हैं कि हमने तुम्हें याद ही किया और तुम्हारा फोन आ गया। ठीक उसी तरह से जब हम ये प्रोसेस लेते हैं रेमेडी का, कि आप सोचते हैं कि वो हमारे सामने हैं एज अ सोल और हम उनके सामने, हम उनसे अपने किए गए हर कर्मा के लिए माफी मांगते हैं और जाने अनजाने उन्होंने भी जो हमें दुख दिया है उसके लिए भी हम उन्हें माफ करते हैं। क्योंकि माफी मांगने से भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है माफ करना, हमारे अंदर के गिल्ट को खत्म करना। जब तक हम उस गिल्ट को खत्म नहीं करेंगे तब तक हम अपने अंदर के किसी भी दोष को खत्म ही नहीं कर पाएंगे। तो ये रेमेडी मैंने उन्हें, ये मेरा एक लाइफ का, यहीं से मुझे ये सीख मिली कि जिंदगी में हम सिर्फ रेमेडीज के पीछे भागते हैं। और मैं आपको सही बताऊं, जब मैं उनसे 2-3 महीने बाद मिली तो मैंने उनमें एक बहुत पॉजिटिव चेंज देखा। आज उनके रिलेशन पहले से बहुत बेटर है। मैं यही नहीं कहूंगी कि 2 दिन में जादू हो जाता है, सब कुछ इंसान भूल कर बिल्कुल बहुत खुश हो जाता है, अपनी लाइफ में बहुत आगे बढ़ जाता है। लेकिन मुझे सिचुएशन मेरे पास आई थी, आज उससे मच बेटर है। आज उनके चेहरे पर वो खुशी है। आज जो उन्हें बात बात पे गुस्सा, एक फ्रस्ट्रेशन था अपनी फैमिली को लेकर, वो नहीं है। और उससे भी कहीं ज्यादा वो अपने हर कर्म को करने से पहले ये सोचती हैं कि मैं जो कर रही हूँ या मैं जो सोच रही हूँ उसका मेरी आने वाली जनरेशन पर या मेरी बेटी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो अगर आपने कोई रेमेडी करनी है, चाहे वो पितृदोष या किसी भी दोष से रिलेटेड हो, तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट आपका भाव होता है कि आपका भाव क्या है। सबसे इंपॉर्टेंट सिर्फ आपका भाव है। तो सबसे ज्यादा किसी भी रेमेडी को करने से पहले अपने भाव पे फोकस करना बहुत जरूरी है। पितृदोष की इस रिसर्च में जो मेरे पास सबसे ज्यादा एक क्वेश्चन उठकर आया, वो क्वेश्चन ये था कि क्या जिनके पुत्र नहीं होते, जिनके बेटे नहीं होते, उनको पितृदोष होता है? ये क्वेश्चन बहुत लोग अक्सर पूछते हैं। लेकिन ये क्वेश्चन का आंसर देने से पहले मैं कहूंगी, क्वेश्चन आप मुझसे जानने से पहले इसका आंसर आपको खुद सोचना चाहिए। पहले के टाइम में अगर हम अपने क्लासिकल्स पढ़े तो हम वहाँ कह सकते हैं कि बेटा ना होने पे या पुत्र ना होने पर हम कहते थे कि पितृदोष है, क्योंकि इस फैमिली में इस वंश को आगे बढ़ाने के लिए कोई नहीं है। उसका रीजन ये था क्योंकि बेटों को ही, बेटे ही घर चलाते थे, बेटे ही पेरेंट्स की सेवा करते थे। वहां माना जाता था कि बेटियों की शादी होने के बाद बेटियों का अपने घर से कोई रिलेशन नहीं रहता। लेकिन आज हम इस मॉडर्न समाज में हैं जहां पर हम कहते हैं कि देश पात्र काल के हिसाब से हम अपनी प्रिडिक्शन देते हैं या अपने एस्ट्रोलॉजी को पढ़ते हैं। वहां पे इस बात की इंपॉर्टेंस ज्यादा है कि आपकी सिचुएशन क्या है। एक फैमिली में एक बच्चे का ना होना पितृदोष है या लड़के का ना होना पितृदोष है? मैं कहूंगी एक लड़के का ना होना पितृदोष नहीं होता, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो आज के समाज में लड़कियां अर्न भी कर रही हैं, घर भी चला रही हैं, अपने बच्चों को भी संभाल रही हैं और अपने पेरेंट्स की जिम्मेदारियों को भी उठा रही हैं। जैसे पहले एक लड़के उस घर को चलाते थे, ठीक आज वही सारी जिम्मेदारियां एक लड़की भी चला रही है। तो एक सिर्फ लड़की का होना घर में आप पितृदोष नहीं कह सकते। आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि एक फैमिली में एक किसी पेरेंट्स के, आप एक लड़का और लड़की दोनों हैं, लेकिन लड़का अपनी स्टडीज के लिए या अपनी जॉब के लिए आफ्टर मैरिज कहीं अलग चला जाता है या फॉरेन चला जाता है, और एक लड़की शादी के बाद भी अपने पेरेंट्स की जिम्मेदारियां निभा रही हैं, उनका हर तरह से उनकी हेल्प कर रही है। तो आपको क्या लगता है कि ये उस लड़की का होना यहाँ पर पितृदोष दिखाता है क्या? और अगर उसके पेरेंट्स को कुछ हो जाता है तो वो जो भी लास्ट रिचुअल्स हैं, अब वो क्या उन पेरेंट्स को मोक्ष, वो लास्ट रिचुअल किसके करने से मिलेगा? उस लड़के के करने से जो एक ड्यूटी की तरह उन लास्ट रिचुअल्स को निभाएगा, या उस बेटी के करने से जो उस भाव के साथ कि मैं अपने पेरेंट्स के लिए कर रही हूँ, उनके मोक्ष के लिए, उनकी लिबरेशन के लिए, उनकी ब्लेसिंग्स के लिए हर हर रिचुअल्स को परफॉर्म करेगी? कौन सी सिचुएशन ज्यादा बेटर है? मैं नहीं कहती कि मैं 100% सही हूँ या मैं जो कह रही हूँ सही हूँ, बट ये क्वेश्चन आपसे है कि आप ही ये सोचकर देखिए कि क्या ज्यादा सही है। किसी फैमिली में एक बच्चे का ना होना पितृदोषा कहलाता है, लेकिन लड़के का ना होना पितृदोषा कहलाता है। मैं इसे एक्सेप्ट नहीं करती।
The story of Pitra Dosha doesn't teach us to fear our ancestors. It teaches us to identify our roots, honor them, and restore the connection between generations. अभी जो भी मैंने आपको बताया एक बेटा या बेटी के लिए या रिचुअल्स को परफॉर्म करने के लिए, इससे रिलेटेड भी हमारे पास एक स्टोरी है रामायण में। जब श्री राम लक्ष्मण जी और सीता जी फाल्गु नदी के तट पर गए थे गया में परफॉर्म करने के लिए श्राद्ध राजा दशरथ जी के लिए, उस श्राद्ध को करने के लिए उसकी तैयारी के लिए राम जी और लक्ष्मण जी उस रिचुअल को परफॉर्म करने के लिए जो भी सामग्री चाहिए होगी वो लेने के लिए चले गए थे। लेकिन क्योंकि पितृ तर्पण का और जो भी रिचुअल्स का एक समय होता है वो समय बीत रहा था, तो राजा दशरथ जी की सोल वहां प्रेजेंट हुई और उन्होंने माँ सीता से कहा कि वो टाइम बीता जा रहा है पिंडदान के लिए। तो माँ सीता ने कहा कि राम जी और लक्ष्मण जी इस समय उपस्थित नहीं हैं। तो राजा दशरथ जी ने उस समय कहा कि पुत्र के ना होने पर एक पुत्री और एक पुत्र वधू अर्थात एक बेटी और डॉटर इन लॉ दोनों ही कोई भी रिचुअल्स परफॉर्म कर सकती हैं। तो माँ सीता ने उनके पास जबकि कोई सामान नहीं था, फाल्गु नदी की रेत को ही से पिंड बनाकर पिंड दान किया और उन रिचुअल्स को निभाया। और साथ ही उन्होंने उस बात को साक्षी रखने के लिए फाल्गु नदी को, गाय को, केतकी के फूल को, ब्राह्मण को और वट वृक्ष को साक्षी मानकर ये रिचुअल्स परफॉर्म किया। जब राम जी आए तो उन्होंने ये बात उन्हें बताई। राम जी ने उनसे पूछा कि उनके पास कोई ऐसा सबूत है जो ये बता सके उन्होंने ये परफॉर्म किया या रिचुअल्स किया। तो माँ सीता ने सबने मना कर दिया सिवाय वट वृक्ष के। सबने बोला कि उन्होंने ये नहीं देखा। यहाँ पर ये स्टोरी बताने का मेरा तात्पर्य सिर्फ इतना है कि उस समय भी जब हम ये कहते थे कि पुत्र का होना बहुत जरूरी है, जहाँ बेटा नहीं होता वहां पर पितृदोष होता है, उस समय भी राजा दशरथ जी की सोल ने अपने पुत्र वधु को यह अधिकार दिया कि एक पुत्र के ना होने पर वो इन रिचुअल्स को निभा सकती है। तो जब आज वो समय जो हमने देखा ही नहीं, जो हमने क्लासिकल्स में पढ़ा है, रिचुअल्स में रिचुअल जिसे हमने क्लासिक्स में पढ़ा है, अपने रिचुअल्स में देखा है, जब उस समय भी एक स्त्री को, एक औरत को ये अधिकार था, तो आज क्यों नहीं एक बेटी को, एक फीमेल को ये अधिकार होता। तो ये बात यहाँ जस्टिफाई करती है कि सिर्फ एक बेटे का ना होना पितृदोष नहीं होता। अगर आपके पास एक सुयोग्य डॉटर है तो वो आपका पितृदोष, वो भी आपके पितृदोष को दूर कर सकती है उन रिचुअल्स को परफॉर्म कर। Pita rin is not limited to son. Traditionally, Shraddh is considered the duty of a son, but in the story, Sita, the daughter-in-law of Dashrath ji, performed the rituals with devotion. Pitrarina is based on love, respect, and duty, not just biological connection. Sincere intention leads to acceptance. Sita made pin from sand with pure devotion and Dashrathi's soul accepted it. The ancestor accept feeling of Shraddh more than the material perfection. Falsehood creates dosha. Those who lied were cursed by the Sita. They show that ignoring truth or dharma leads to negative karma, consequence which can manifest as pitra dosha in our lives. Blessings of truth and dharma. Akshayvrit, the only truthful witness, are blessed by Sita. तो ये स्टोरी हमें ये दिखाती है कि आप जिस भाव से करते हैं किसी भी रेमेडी को करने के लिए, आपका भाव सबसे ज्यादा और आपका डिवोशन इंपॉर्टेंट होता है, और आप धर्म के अगेंस्ट जाकर कुछ भी करते हैं तो वो कहीं ना कहीं पितृ तो आपकी फैमिली में पितृदोषा बनकर आता है। नेक्स्ट है आपका, रेमेडी डज नॉट इरेज द पास्ट, इट हेल्प अस ट्रांसफॉर्म आवर रिलेशन विद द पास्ट। हमको अपने रिलेशनशिप, हम कहते हैं कि हमें पितृदोषा को अपने लाइफ से दूर करना है, हमें कुछ रेमेडी करनी है, लेकिन रेमेडी कहीं बाहर नहीं है, रेमेडी आपके अंदर है। जैसे आज हम यहाँ बैठे हैं सब, हमारे बीच में कनेक्शन के लिए इंटरनेट है जो हमें एक दूसरे से जोड़ रहा है। ठीक उसी तरह से हमें अपने एंसेस्टर से जुड़ना है, तो वहां पर मैं मानती हूँ इंटरनेट वो हेल्प नहीं कर सकता, वहां पर हेल्प करेंगे हमारे भाव।
हमारे अंदर की वो इच्छा, वो हमारा ग्रेटिट्यूड जो हमें उनसे जोड़ता है, अपने हर कर्म को करने से पहले जो हम उन्हें याद करें, उनकी ब्लेसिंग्स ले, ये चीजें हमें उनसे जोड़ती हैं। आप एक फैमिली लीनेज में चले आ रहे हैं, उन पैटर्न्स को मैं यहाँ ये मान सकती हूँ कि हम ये सोच लें कि आज मेरे ये करने से इस बात की कोई गारंटी नहीं कि मैं इस पैटर्न को तोड़ पाऊंगी। लेकिन अगर मैंने ये कर्म किए या मैंने ये रिचुअल्स निभाए या मैंने अ, धर्म अपने रिचुअल्स में रहकर अपने धर्म को फॉलो कर कर वो कर्मा किए, तो कहीं ना कहीं मैं अपने आने वाली जनरेशन के लिए वो एक पाथ खोल दूंगी। मैं नहीं तो मेरी आने वाली जनरेशन, वो नहीं तो उनके आने वाली आगे की जनरेशन। कोई तो उस कड़ी को तोड़ेगा, कोई तो उस पुत्र दोषा से आपको मुक्ति दिलाएगा। क्योंकि अगर यही सोचकर कि अगर मुझे मुक्ति ही नहीं मिलनी अपने कर्मा से, उस पितृदोष से, तो मैं क्यों ये सब करूं, क्यों मैं रेमेडी की तरफ भागूं। गंगा जी जो इस धरती पर आई, भगीरथ जी ने लेकर आए। साधना केवल उन्होंने ही नहीं करी थी, उनके फादर ने, उनके ग्रैंडफादर ने भी करी थी। लेकिन भगीरथ जी की तपस्या से ही प्रसन्न होकर माँ गंगा धरती पर आई। अब आप सोचिए, अगर उनके पेरेंट्स या उनके ग्रैंड पेरेंट्स वो तपस्या नहीं करते, वो इस और भगीरथ जी भी उसे आगे फॉलो नहीं करते, तो फिर गंगा जी तो धरती पर आ ही नहीं पाती। वो अपने कुल को, जो उनके वंशज थे, उन्हें कभी आ, मोक्ष दिला ही नहीं पाते। तो इसीलिए हमें कोई भी रिचुअल्स या कुछ भी अपना कर्मा ये सोच के नहीं करना कि मैं इस चीज को आज खत्म कर पाऊंगी कि नहीं, या खत्म कर पाऊंगा कि नहीं। क्योंकि आपके हर अच्छे कर्मा आपके आगे की लिनेज में ऐड हो रहे हैं। भगीरथ जी की फैमिली के, उनके फादर के, उनके ग्रैंडफादर की जो भी तपस्या थी, वो उनकी तपस्या में जब वो ऐड हुई, हमें नहीं पता कौन से कर्मा पर आकर वो चीज पूरी होती है। जब वो भगीरथ जी की तपस्या के साथ उनके पेरेंट्स की तपस्या ऐड हुई, तब कहीं जाकर भगवान प्रसन्न हुए। तो ठीक उसी तरह से हमें कोई भी रेमेडी करते हुए या कुछ भी रिचुअल्स करते हुए ये नहीं सोचना कि मेरे ये करने से मेरी लाइफ में सडन चेंज होगा या नहीं होगा। अगर आपको ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए तो उस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए आपको पेन भी बियर करना पड़ेगा। क्योंकि कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन बिना पेन के नहीं आता आपकी लाइफ में। हर ट्रांसफॉर्मेशन से पहले आपको वो पेन लेना ही पड़ता है। अगर आपको दूध में से आपको घी खाना है, या आपको मलाई खानी है, आपको मक्खन बनाना है, तो आपको दूध को मथना ही पड़ता है, फाड़ना ही पड़ता है। तो इसीलिए आप कोई, यहाँ पर मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगी कि कोई भी रेमेडी आप करना चाहते हैं पितृदोष, ये मत देखिए कि आपकी कुंडली में जो सारी चीजें पढ़ाई गई या जो सारी चीजें आपने समझी वो है या नहीं। अगर मेरी कुंडली में वो सारे कॉम्बिनेशंस हैं, मुझे तभी ये सब करना है। कई बार आपको पितृदोषा देखने के लिए कॉम्बिनेशन देखने की जरूरत नहीं पड़ती। आपकी फैमिली में वो पैटर्न चले आ रहे होते हैं, जैसे मैंने आपको लाइव के समझाया। अब वहां पर उनकी फैमिली में इतने सारे डिवोर्स हो रखे थे, लेकिन उस एक लेडी के वो रेमेडी करने से उसने उस कार्मिक पैटर्न को तोड़ दिया। हो सकता है कि मैं उन्हें कहूँ आप डिवोर्स ले लो, अपनी लाइफ में शायद खुश रहोगे, तो वो कार्मिक पैटर्न टूटता ही नहीं। क्योंकि उस फैमिली में वो डिवोर्स आके भी उनकी बच्चों की फैमिली में कहीं ना कहीं वो क्रिएट होता। लेकिन क्योंकि उस लेडी ने वहां पर उस चेन को तोड़ा है, वो उस रिलेशनशिप में रही, उन्होंने वो डिवोर्स नहीं होने दिया। तो आपको नहीं पता कि आप किसको उस फैमिली में, उस लिनेज में चुना जाता है उस कार्मिक पैटर्न को तोड़ने के लिए। लेकिन यहाँ ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप उस चेन को तोड़ने के लिए बने हैं कि नहीं। यहाँ ये इंपॉर्टेंट है कि आपको सिर्फ अपने कर्मा इस बेस पर करने हैं कि मेरे कर्मा मेरे एंसेस्टर के लिए भी ग्रेटिट्यूड रखेंगे और मेरी आने वाली जनरेशन के लिए भी ब्लेसिंग्स बनकर उसके साथ रहें। इसीलिए कहते हैं कि रेमेडी कोई मैजिक नहीं होती, वो आपका कर्मा ही है, आपका फेथ ही है। इन सब में हम, एक जरूरी चीज ये है कि जब पितृदोषा की हम बात करते हैं तो हम नाइन्थ हाउस, हम सन को सबसे इंपॉर्टेंट मानते हैं। बट नाइन्थ हाउस या सन ही क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि बाकी प्लैनेट्स इंपॉर्टेंट तो कुंडली में सारे प्लैनेट्स होते हैं, तो सिर्फ हमने सिर्फ सन को और नाइन्थ हाउस को ही क्यों चुना? उसका मेन रीजन ये है कि सन क्योंकि हमारी सोल को दिखाता है, हमारे फादर को दिखाता है।
तो इसीलिए हमने उसे पितृदोषा के लिए सबसे इंपॉर्टेंट माना। नाइन्थ हाउस धर्म को दिखाता है, हमारे लीनेज को दिखाता है, इसीलिए हमने उसे इंपॉर्टेंट माना। लेकिन उससे कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट इस बात का है कि हमारी सन हमारी लाइफ में डिसिप्लिन दिखाता है। सन एक फिक्स टाइम पर उसका निकलने का टाइम, उसके अस्त होने का एक टाइम है। वो कभी ये नहीं कहता लाइफ में कि आज संडे है तो आज मैं लेट निकलूंगा, आज हॉलीडे है तो आज मेरा मन नहीं है निकलने का। उसने तो निकलना ही है, वो अपने टाइम पर निकलेगा ही। तो सन आपसे यही चाहता है कि आप भी अपनी लाइफ में वो डिसिप्लिन लाओ। नो मैटर संडे है मंडे है, आपका एक टाइम होना चाहिए लाइफ में आपके किसी भी काम को करने का। लेकिन हम आज के लाइफस्टाइल में इतना ज्यादा बिजी हो गए हैं कि हमारे लिए हम रात को 2:30-3 बजे सोना एक नॉर्मल चीज है, सुबह 10-11 बजे उठना नॉर्मल है। फिर हम कहते हैं कि हम तो कुछ गलत कर ही नहीं रहे। आपको किसी की कुंडली देखने की जरूरत नहीं। अगर आप किसी से ये पूछ लें कि आप अपने सोने का ही पैटर्न बता दीजिए, सोने और उठने का, या आपकी दिनचर्या क्या है, आपको उसके उस दिन के पैटर्न से ही पता चल जाएगा कि उस कुंडली के जितने भी प्लैनेट्स हैं वो उसको सपोर्ट कर रहे हैं कि नहीं। याद रखिए, दोषा कोई भी दोषा आपकी कुंडली में उतनी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करता। लेकिन आपकी कुंडली में जो योगा है, हो सकता है किसी कुंडली में एक हो, किसी कुंडली में 10 हो, लेकिन अगर आप अपने उन योगा को एक्टिव ही नहीं कर पाते तो आपको सिर्फ अपने दोषा ही दिखते हैं कुंडली में। क्योंकि उनको एक्टिव करने के लिए आपको अपने सन मून वीनस हर प्लेनेट को अच्छा करना पड़ेगा। लेकिन अगर हम बात अभी पितृदोषा की कर रहे हैं तो सबसे पहले अपने सन को आप मजबूत कीजिए, अपने सन को स्ट्रॉन्ग कीजिए। जिस दिन आप अपनी लाइफ में अपना एक पैटर्न ले आएंगे, आप एक डिसिप्लिन ले आएंगे, आप देखेंगे आपकी लाइफ की आधी से ज्यादा प्रॉब्लम सॉल्व होने लग जाती हैं। क्योंकि सन यहाँ पर आपका आत्मा का कारक है। आपकी सोल ने जब इस बात को एक्सेप्ट कर लिया है ना कि मुझे, भाई आज चाहे संडे हो आज चाहे मंडे, कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे ऑफिस जाना है या नहीं जाना, मुझे कॉलेज जाना है या नहीं जाना, मैं अपने टाइम पर ही उठूंगा, अपने टाइम पर ही अपने काम करूंगा, उस ईश्वर को ग्रेटिट्यूड करूंगा जो भी उसने मुझे दिया है, कुछ टाइम अपने पेरेंट्स के साथ स्पेंड करूंगा। तो आप देखिएगा कि चाहे वो कितना से कितना भी स्ट्रॉन्ग पितृ दोषा क्यों ना आ रहा हो, चाहे वो आपके सब साथ वर्ग का चार्ट पे क्यों ना क्रिएट हो रहा हो, लेकिन आपकी लाइफ में उसका इम्पैक्ट आपको फील ही नहीं होगा। आप उस बुरे में भी अपनी लाइफ के ना अच्छा ढूंढ लोगे, पॉजिटिव सोच लोगे कि हाँ अगर मेरी लाइफ में ये बुरा हुआ तो उसके बाद ये अच्छा हुआ, लाइफ ने मुझे ये ऐसे पुश किया तभी मैं जिंदगी में आगे बढ़ पाया या बढ़ पाई। तो ये बहुत जरूरी है आपकी लाइफ में कि आप अपने दोषों में उन रेमेडीज को इंक्लूड करें जो आपकी डेली की दिनचर्या में है। यहाँ पे मैं आपको एक, जो पर्सनली मैं फील करती हूँ और करती हूँ, ये कहीं नहीं लिखा कि आप इस मंत्रा को पितृ दोषा के लिए कर सकते हैं। ये मंत्र आदि शंकराचार्य द्वारा निर्मित हैं, जो हमारे अद्वैत वेदांता के, जिन्होंने अद्वैत वेदांता की स्थापना करी है, ये उनके द्वारा रचित है। क्षमा याचना मंत्र, ये उसका लास्ट श्लोक है। उन्होंने काशी में काफी तपस्या कर कर इस श्लोक की रचना करी थी। आप इस श्लोक को जब पढ़ेंगे या सुनेंगे पूरे भाव से, चाहे आप एक ही बार पढ़िए उसको सोने से पहले, ये श्लोक मैं आपको सिर्फ आपके पितृदोषा की मुक्ति के लिए नहीं बता रही, ये श्लोक है क्योंकि मैंने इसको फील किया है। जब आपका मन करे आप इसे कर कर एक बार देखिएगा, इसे शुरू कीजिएगा। लेकिन वही सन की तरह एक रेगुलर, आप ये सोचे कि आज आप इसको एक बार पढ़ेंगे और आपकी लाइफ में कोई चमत्कार हो जाएगा, नहीं। क्योंकि मेरे पास वो जादू नहीं कि मैं किसी को कोई ऐसी रेमेडी दे सकूं उसकी लाइफ के सारे दोष दूर हो जाएं। अगर ऐसा होता तो मैं अपनी लाइफ के सारे दोषों को सबसे पहले दूर करती। लेकिन हाँ, ये मंत्र करने के बाद मैं ये समझ गई कि आज मैं जो भी कर्म करती हूँ मैं उसको करने से पहले 10 बार सोचती जरूर हूँ कि मैं सही कर रही हूँ कि नहीं, मैं किसी का दिल दुखा रही हूँ कि नहीं। तो आप इस मंत्र को जरूर करिएगा, ये आपको कहीं भी मिल सकता है। ये मंत्र मैं आपको एक बार बोलकर बताऊंगी। कर चरण कृतम वाक्याजम कर्म जमवा, श्रवण नयन जमवा, मानसम वापराधम,
विहितम विहितम वा सर्वमतेशमस्वा जय जय करुणादे श्री महादेव शंभु। आदि शंकराचार्य ने ये मंत्र बनाया था हमारी डेली के कर्मों के को करेक्ट करने के लिए, हम जाने अनजाने जो भी गलत करते हैं उसके लिए। इस मंत्र का अर्थ है, हे करुणा के सागर महादेव, मेरे हाथों, पैरों, वाणी से, मेरे शरीर से, मेरे कर्मों से, मेरे एक्शन से, मेरे कानों से, मेरी आंखों से या मेरे मन में आने वाले विचारों से जाने अनजाने जो भी अपराध हुए हों, चाहे वो शास्त्र सम्मत हो या नहीं, विधि पूर्वक हो या निश्चित हो, कृपया उन्हें क्षमा कीजिए महाराज। शंभु आपकी जय हो, जयकार। जब आप ये मंत्रा करते हैं तो ये मंत्र आपको ये दिखाता है कि आप अपने कर्मा के लिए जब एक फॉरगिवनेस रख रहे हैं, माफी मांग रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ टाइम पीरियड बाद आप ये फील करते हैं अपने हर कर्मा से पहले कि मैं सही कर रहा हूँ कि गलत कर रहा हूँ। मैं आपको ये नहीं कहूंगी कि मैंने ये बोला है तो आप करिए या नहीं करिए। जो मैंने फील किया अपनी इस रिसर्च में, जब कई चीजों को पढ़ा, कई चीजों को समझा, कई चीजों को जाना, और जो चीजें, क्योंकि रेमेडी, मेरा मानना है किसी भी एस्ट्रोलॉजर को रेमेडी देने से पहले उसे उस रेमेडी को खुद फॉलो करना बहुत जरूरी है। उसकी लाइफ में वो पैटर्न, वो रेमेडी कर कर उसकी लाइफ में वो चेंजेस आए हैं कि नहीं, वो करना बहुत जरूरी है। तो मैंने इस मंत्र को कर कर, मैं ये मंत्र सिर्फ इसलिए कर रही हूँ कि मैं नहीं मानती कि मेरे एंसेस्टर ने मुझे कोई दोषा दिया है। मैं हमेशा ही मानती हूँ कि उनकी ब्लेसिंग्स है। ये मंत्र से मैं इसलिए कर रही हूँ कि मैं ऐसा कुछ भी कार्य ना करूं जो मेरी आने वाली लीनियज में पितृदोषा बनकर आए। मैं उसी का सभी कर्मों के लिए अपने क्षमा याचना करती हूँ। एंड लास्ट, मैं आपसे यही कहूंगी कि हम सबकी जो जिंदगी है, जो कुंडली है, एक मूवी की तरह होती है। इसमें कुछ सीन हमारे पास से आते हैं और कुछ पैटर्न्स हमें हमारे इनहेरिटेंस से, हमारे एंसेस्टर से मिलते हैं। पर आपको डिसाइड यहाँ ये करना है कि आप इस मूवी के विलेन बनना चाहते हैं कि हीरो। ये आपके ऊपर है। आपके पास ये चॉइस नहीं थी कि आप इस फैमिली में आओ, वो चॉइस आपको नहीं मिली, ये मैं मानती हूँ। लेकिन इस फैमिली में आने के बाद, इस स्टोरी में आने के बाद आपको क्या बनना है, ये चॉइस भगवान ने आपके ऊपर छोड़ी है। आप चाहे तो विलन बन के सारी जिंदगी अपनी किस्मत को रो सकते हैं कि मेरे पितरों ने मुझे कुछ अच्छा नहीं दिया, उनके दोषों के कारण आज मैं परेशान हूँ, आज मेरी शादी अच्छी नहीं चल रही, आज मेरी नौकरी अच्छी नहीं चल रही है। आप उन्हें हर चीज के लिए ब्लेम कर सकते हैं। और या फिर आप अपनी लाइफ के हीरो बनकर उन पैटर्न को ट्रांसफॉर्म करने की हिम्मत रखते हैं, उनसे लड़ने की हिम्मत रखते हैं, उस अवेयरनेस के साथ, उस एक्सेप्टेंस के साथ कि हाँ, मेरी लीनेज में हो सकता है कि गलतियां हुई हों मेरे पूर्वजों से, और मैं कोशिश करूंगा या करूंगी कि मैं उन गलतियों को बदल सकूं या ठीक कर सकूं। धर्मा को फॉलो करिए, ग्रेटिट्यूड रखिए, अपने एक्शन से नए पॉजिटिव पैटर्न्स को बनाइए, अपने आने वाली जनरेशन के लिए एक एग्जाम्पल सेट कीजिए। क्योंकि आपने सिर्फ आज अपनी लाइफ को उस दोष से मुक्ति नहीं दिलानी, आपने अपने आने वाली लिनेज को, अपने आने वाली जनरेशन को, अपने बच्चों को उन दोषों से मुक्ति दिलानी है। यू मे इनहेरिट द पैटर्न बट यू डोंट हैव टू रिपीट द पैटर्न। कुंडली आपको स्टोरी बताती है, लेकिन हीरो बनना है विलन, ये चॉइस आपकी है। एंड लास्ट, थैंक यू सो मच मेरी आज की प्रेजेंटेशन के लिए। मैं ग्रेटिट्यूड करूंगी आप सभी का, अपने गुरु का और अपने एंसेस्टर का। कुछ भी ऐसा हो जो मैंने गलत बोला हो या आपको बुरा लगा हो, क्योंकि मैं भी अभी सीख ही रही हूँ, तो प्लीज मुझे फॉरगिव कीजिए। थैंक यू सो मच। Very well said, Kirti ji. That was a very nice and heart-touching presentation that you have given today. The last one, very nice. Like how you are balancing the what exactly the remedy is. Very nicely explained. थैंक Yes, यू। Chalpati ji. Yeah, I could see more emotional into this presentation than the actual presentation, Kirtiji, because you were too emotional in presenting the your यस सर। thesis and maybe of your final thesis. But the thing is, you are very, very emotional.
Yes, That क्योंकि सर means मैंने ये actually in your presentation, I could see that equal importance should be given to the daughters and also the sons. But that was more, you were stressing more on that particular point than, your एक्चुअली सर ये thesis was, क्वेश्चन बहुत no, आता no, your thesis was excellent, the way you have presented your final conclusion. I think this is your final thesis, I believe. But that was a very nice presentation. But I could see, the way you are, you know, stating your, going through your thesis and your final presentation, in every line you are so emotional that, अरे कुछ ना करो यार, don't go for a remedies, don't go for remedies, एस्ट्रोलॉजर्स को रेमेडीज के बारे में मत सताओ, ऐसा आपका नहीं नहीं, the मेरा the ये मानना the नहीं था live सर। example, no, the live example that you have given, that you were talking, you had a talk with your neighbor, and the way you have, brought her back to her life is an excellent one, and the way you have chanted these slokas, that last sloka that you have given of Adi Shankaracharya was excellent. The way you started your presentation was, then you suddenly went into some trance. I think somebody, your Pitru has come to you and, made this presentation. I really enjoyed, and the way you presented is excellent, madam. Don't be sentimental and emotional. And it's part of your thesis. I have seen more emotional into your presentation than actual thesis. That एक्चुअली was सर an मेरे साथ हुआ excellent. हुआ भी No, ऐसा कि मेरी ये नहीं नहीं प्रेजेंटेशन पहले होनी थी, नहीं नहीं बट मैडम, ये आप जब सीता जी के बारे में बता रहे तो हम आपको कुछ मैं बोल रहा हूँ ना, आपको जो आपका पितृ कोई है, आपका एंसेस्टर आपके पास आया और उन्होंने प्रेजेंटेशन दिया, ऐसा मुझे लगता है. यस थैंक यू मैम, वेरी सर, वेरी वेरी वेल सेड. आपने ये बात कही तो मैं यहाँ पे कहूंगी सर ट्रूली, क्योंकि मुझे भी यही फील होता है, क्योंकि मेरी ये प्रेजेंटेशन लास्ट मंथ होनी थी, लेकिन ये प्रेजेंटेशन किसी रीजन से लेट हो गई। और यहाँ जब वो लेट हुई प्रेजेंटेशन, तो इस टाइम सन मगहा में थे। और जैसे कृष्णकांत सर ने बताया, मगहा कहीं ना कहीं आपके एंसेस्टर से जुड़े हैं, और मैं लियो लगना हूँ, तो सन, मरकरी, केतु सब मेरे लगन में इस टाइम मगहा में ही बैठे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं मेरे एंसेस्टर मुझे ब्लेसिंग्स ही दे रहे हैं, और शायद उन्होंने ही मुझे चुना इसके लिए। तो मैंने इसीलिए माफी मांगी कि जाने अनजाने मुझसे कोई भी गलती हो गई हो, क्योंकि मैं खुद एक बच्ची हूँ, मुझे नहीं पता कि मेरी रिसर्च कितनी परफेक्ट है। पर जैसे कृष्णकांत सर ने रास्ता दिखाया, मैं उस रास्ते पर चली हूँ, तो हो शायद गलतियां कम होंगी। The Bahava itself is there's a lot of miracles actually. Yeah, so let's hear the feedback from sir. Sir, available? Yeah, I'm available. I'm available. I was like, जैसे वो ट्रांस में है, मैं भी ट्रांस में. Good one, actually. Good. The way you have narrated it is very good. So let's look forward to your thesis, and we'll conclude it at a later stage. थैंक यू सो मच Thank सर। you. Yeah. Any more comments from the audience or questions? Yeah, Kirti ji. मैं तो पहले मैम आपको बधाई देना चाहूंगी कि इन लोगों की सोच को आपने एकदम बदल के रख दिया। जो थैंक पितृ यू। दोष के उसके लिए था कि लड़कियों को नहीं, तो मैम मैं भी अभी इमोशनल हो रही हूँ बहुत ही ज्यादा, तो बोल नहीं पाऊंगी मैम। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। Rajendra ji. कीर्ति मैम, यस सर। मुझे ये लगा कि मेरा सौभाग्य ये सेशन मैंने सुना कंप्लीटली। सेकंड, मुझे ये स्कॉलर सेशन नहीं लगा, मुझे स्पिरिचुअल डिस्कोर्स जैसे लगा। थैंक्स अ लॉट। थैंक यू सो मच सर। Yeah, that is that came out of experience, sir. यस Yes, yes. So thank you विश्व so में पढ़ने के बाद हम सब इतने एक्सपीरियंस हो जाते हैं। rightly said. So if there are no questions, let me remind you, like we will have another session on 26th of August from Paniram Sharma ji on education part. And if there are no questions, let's close the session. And good luck and all the best, Kirti ji. थैंक यू Again, सो मच। congratulations. Yeah.